Band ready. Let's go. Let's go. May I request our school representative to please escort our guests to the stage with due honor. It is indeed a great honor for all of us at Carmel School, Ambikapur to welcome among us our esteemed chief guest, Shri Vilas Bhoskar sir, Honorable District Collector of Sarguja, who is an officer of 2011 batch of Indian Administrative Service, who has joined IAS on 5th December 2011. Sir has served remarkable distinction in various key positions as Commissioner of Ambikapur Municipal Corporation, Collector of Bimitra and Korea districts, Management Director of Chhattisgarh State Road Development Corporation, Deputy and Joint Secretary of Forest Department, and Mission Director of National Health Mission. At present, he is serving as the District Collector of our Sarguja. We are deeply honored to have such an accomplished and visionary officer among us today. Students, let's go.
Students, claps go. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings we need. Mercy drops from bless are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessings, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and honor the word. Showers of blessings we need. Mercy drops from grace are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. But for the showers we plead. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone. A word with immense meaning. It is often said that education is the most powerful weapon, a weapon which we can use to change the whole world. Education is not just about books, marks, and degrees. It is about opening minds, shaping character, and awakening the best version of us. You would be very interested to know that when a child learns to read and write, he opens a new world, a world full of courage, hope, and ideas. Education gives wings to our dreams and strength to our action. It teaches us how to think critically and choose rightly, live responsibly. When one is educated, it does not affect individually. It affects the whole family, community, and the whole nation. Today, when we look around us, we see the fruits of education everywhere, such as in science, in technology, in good governance, and in every act of social progress. But above all, education stands humanity, to be just, kind, and compassionate. We are indeed blessed to study in a school where the education is just not limited to books, it has extended to life values like honesty, discipline, respect and service under the guidance of our teachers, inspiration from our principals and sisters. We learn that true education is not about knowing more, it is about being more understanding, being more human. On this proud day, in the presence of our chief guest, we, the students, pledge that we would not just use our education for our personal success, but for the progress of the whole nation. Let us remember, building may rise and fall, but the light of education, once kindled, would never die. It passes from one mind to another, from one generation to the next, and it makes the future brighter and better world. Thank you and have a wonderful day. Vande
ज़्यादा वक्त आपका लूँगा नहीं, आपको पढ़ाई भी करना है। बच्चे लोग, आज आने का मेरा आने का यह मकसद था कि आपका स्कूल का देखें, अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा पढ़ाई भी होता है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में, विश्व मतलब पूरे विश्व में बहुत सारे देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान, रशिया, 200 से ज़्यादा देश हैं। उसमें भारत ही अपना ऐसा देश है जिसमें अपने देश को माता मानते हैं। बाकी कोई भी देश अपने देश को माता बोलता है, लेकिन ये भारत माता जो है उसका, जब ब्रिटिश हमारे उस पर राज कर रहे थे, हमारे देश पे उन्होंने हुकूमत कर रहे थे, हमें गुलाम बनाया था, उस वक्त बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की आहुति देके, जान देके अपने देश को स्वतंत्र बनाया। ये हुआ कैसे? ब्रिटिश जो थे उन्होंने 250-300 साल अपने देश पे राज किया। आप यहाँ से खड़े हैं, अगर 1947 से पहले अगर ऐसा टाइम होता तो आप खड़े रह के भारत माता की जय, वंदे मातरम ऐसा बोल नहीं सकते थे। अगर बोलते तो वो हमें गोली मारते। लेकिन जब हमारे देश में महात्मा गांधी जी है, स्वतंत्र वीर सावरकर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, भगत सिंह है, राजगुरु है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, ऐसे देशभक्त थे। जब उन्होंने पढ़ाई किया, बाहर के देश में जाके देखा तो बोले कि अरे यहाँ तो बहुत स्वतंत्रता है और हमारे देश में क्या हो। इन्होंने अपना वहाँ जाके वहाँ पढ़ लिए, वहाँ का नौकरी अच्छा छोड़ दिए और अपने देश के काम करके अपना पूरा जीवन स्टार्ट किया। और अथक लड़ाई के बाद बहुत सारे अपने देशभक्त है, स्वतंत्र वीर है, उन्होंने अपने खून से अपने देश को स्वतंत्रता दिलाई। शायद ही हमने से कोई ऐसा हो भारत देश में जिन्होंने स्वतंत्रता का जो लड़ाई था अपना, उसमें से उन्होंने देखा है। किसी के दादा हो, किसी के नाना हो, किसी के परदादा हो, उन्होंने तो लड़ाई लड़ी, हम में से किसी ने नहीं की। लेकिन जब भारत देश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, तब हुआ क्या? 1875 में हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी, उन्होंने एक गीत लिखा, वंदे मातरम। वंदे मातरम मतलब ये भारत माता, मैं आपको नमन करता हूँ, आपके स्वतंत्रता के लिए मैं अपनी जान भी रक्षा करता हूँ। और इस गीत को ब्रिटिश अंग्रेज हुकूमत इतना डरी कि उन्होंने वो गीत को बैन कर दिया, कोई गा नहीं सकता। कोई वंदे मातरम अगर बोलेंगे तो उसको जेल में डालना, गोली मारना, ये सब चीजें कर दी। लेकिन एक बार जब स्वतंत्रता की लड़ाई की लहर चली, पूरे भारत देश में ब्रिटिश लोगों को हमारे यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर। और वो जो गीत है, जो हमारा भारत की स्वतंत्रता का एक मंत्र बना था, उसको इस साल 7 तारीख को हम लोगों को 150 साल कंप्लीट होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन्होंने बताया कि हर एक अपना देश का एक नागरिक, हर एक बच्चा ये जाने कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं, हम यहाँ तक पहुंचे हैं किस कष्ट करके, कहाँ का लड़ाई करके हमने अपने भारत देश को, हमारे पूर्वजों ने भारत देश को स्वतंत्रता दिलाई है, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। जब भी हम आगे जाते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि भाई हम लोग कैसे थे, हमें स्वतंत्रता कैसे मिली, हमारे कितने लोगों ने अपने देश के लिए जान दे दी। ये सारी चीजों को हमें इस बार स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भगत सिंह हंसते हंसते अपने देश के स्वतंत्रता के लिए फांसी पे चढ़ गए। ऐसे अगिनत स्वतंत्र वीर थे, अगिनत लोग शहीद हुए, तब हम यहाँ तक पहुंचे। तो इसीलिए 150 साल जो गीत है, जो हमारे देश का एक आत्मा बन गया था, उसी का 150वीं जो जयंती 150 साल पूर्ण हुए। इसीलिए आप सभी लोग यहाँ हम उपस्थित है। ये जो गीत है, इसका एक पवित्रता है और इसीलिए हर एक भारत देश के दिल में, हर एक अपने जहन में ये होना चाहिए कि वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो एक बार मेरे पीछे आप सभी लोग 3 बार दोहराएंगे, वंदे। आवाज नहीं है। भारत देश जब था हमारे इसमें, वंदे मातरम ये 3 शब्द बोलने के लिए भारत के बहुत सारे हमारे शहीदों ने क्या क्या जान दे दी। उस समय भारत में स्वतंत्र नहीं था। अब हमारा भारत भी स्वतंत्र है। स्वतंत्र भारत में वंदे मातरम बोलने के लिए आवाज कैसे होना चाहिए? फिर से एक बार, वंदे वंदे वंदे। दूसरा चीज,
पिछले साल कुछ यहाँ एक इशू हुआ था, तो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ। आपको आइंस्टाइन पता है, न्यूटन पता है, थॉमस अल्वा एडिसन पता है? ये लोग कितने पढ़े? तो ये जो पढ़े थे, अच्छा तो पढ़ाई किया था उन्होंने, पर उन्होंने स्ट्रेस लेके कोई पढ़ाई नहीं किया था। जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति पढ़ाई में बहुत अच्छा हो। तेंदुलकर पता है, लता मंगेशकर पता है, ये सभी लोग क्रिकेट में, स्पोर्ट में अच्छे हैं। सीवी रमन पता है, रमन इफेक्ट था, उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो हर व्यक्ति हर एक क्षेत्र में अच्छा नहीं हो सकता है। कुछ पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ खेलकूद में अच्छे होते हैं, कुछ गाना बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ पायलट बनते हैं, कुछ डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ कलेक्टर बनते हैं। ठीक है, ये सभी लोग अपना अपना, हर भगवान ने हमें अलग अलग बनाया। इसमें एक अच्छा चीज रहता है, इसमें एक बहुत अच्छी चीज रहती है। ये चीजों को देखते हुए अगर पढ़ाई में थोड़ा किसी चीज में कम मार्क्स भी मिल गए ना, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। टेंशन क्यों ले रहे हैं? आज अगर मैथ्स में कम मार्क्स मिल गए, 2 महीने के बाद और ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, उसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? मैं दूसरी कक्षा में फेल हो गया था, 7वीं कक्षा में भी फेल हो गया था, 12वीं में पास होने के बाद मुझे एडमिशन नहीं मिला, 1 साल में स्कूल में नहीं गया, लेकिन मैं यहां तक पहुंचा। जब भी जिंदगी में, जीवन में जब भी ऐसा कई टाइम आता है और हमें लगता है कि यार मुझे करना है, बस वही टाइम से आपका टाइम चालू हो जाता है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, कभी भी एग्जाम हो, रिजल्ट हो, कभी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जीवन अच्छा बनाने के लिए पढ़ाई करना तो बहुत जरूरी है, बट स्ट्रेस लेके, टेंशन लेके, प्रेशर में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। प्रेशर में कभी काम होता है क्या? अच्छा कभी नहीं होता। इसलिए बच्चों, आराम से पढ़ो, जितना कूल माइंड, अच्छा खुश होकर आप पढ़ोगे, उतना ज्यादा पढ़ाई होगा और हमारे दिमाग में जाएगा। तो यही बताने के लिए मैं आप यहाँ आया हूँ कि आप कभी भी टेंशन लेके पढ़ाई करना है, बट स्ट्रेस लेके, टेंशन लेके कभी नहीं पढ़ाई करना है। हो सकता है आज आपको अच्छे मार्क्स मिले, 12वीं में जब टाइम आएगा तो कम मार्क्स मिले तो कैसे होगा? अगर मैं दूसरी ना फेल नहीं होता, 7वीं फेल नहीं होता, तो हो सकता था मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन मैं तो कलेक्टर बन नहीं सकता था। तो इसलिए जब भी टाइम मिले पढ़ाई करना, लेकिन कम मार्क्स मिले, इसलिए कभी दुखी भी मत होना, और ज्यादा मिलने के बाद कभी अहम भाव भी मत आने देना कि मेरे को तो बहुत अच्छे मार्क्स मिले। इसलिए स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं करना है। और सभी को बहुत बहुत बधाई। 150 साल हम लोगों ने हमारे वंदे मातरम गीत को कंप्लीट किए। आपका स्कूल बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बार बार स्कूल में आना चाहिए, बच्चों से बात करना चाहिए। टीचर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, आपका स्कूल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो आने वाले भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। Dear teachers and my dear students, it's a great honor for Carmel School family today, since we have our respected honorable guests with us, and on behalf of the whole school family, once again, let's put our hands together and express our gratitude. Thank you